सो हाय एवरीवन। तो थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एंड दिस इशू इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन टचेबल इशू विच पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिकॉज लोगों को लगता है ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी और या फिर डीमोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बट आई हैव बीन थ्रू दिस फेस एंड आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रूली एग्जिस्ट एंड पीपल आर गोइंग थ्रू इट. A lot of my seniors when they got laid off, a lot of my juniors when they're not getting replies, even myself when I'm not getting any reply, I switched my job and now I'm getting stuck, right? What to do next? These things happen, and it's like a fallback loop. If you don't push yourself, if you don't take care of yourself in the right moment, you can get stuck into it. Because I've seen people quitting the same IT industry just because of this reason, because they're not able to cope up with the anxiety, depression and all those things. So first of all, बात करते हैं पहले freshers की. There's a lot of freshers right now. Even my juniors are facing a lot of difficulties in getting their first job. I know it is happening. It is really hard to compete with a lot of people, because right now it's, if there was around 1,000 openings, with the impact of AI it already been reduced to 700, right? There's a slight impact of AI in terms of your application as well, in terms of number of openings as well. Now this, if 1,000 people are competing for 1,000 applications, now 1,000 people are competing for 700 applications. The thing is, competition is there, but you have to keep yourself steady, you have to keep yourself motivating. Because I know it is been disheartening that when you keep applying, when you keep cold emailing to HRs but you're not getting replies. Trust me, this is the moment where a lot of people quit and they stop trying and they stop putting efforts for their dreams. Trust me, just think of a scenario when you'll get a job offer, no matter it's for 20 LPA, 40 LPA, or 100 LPA. The thing is, the moment you got this offer letter in your DM, offer letter in your email, and you share this news with your parents, with your family, how they will feel. The face, the reactions of your mom, the reactions of your dad, this is one thing which gonna keep you motivated, because this was a one thing which keep me motivated when I was a fresher. I was struggling to get a job, right? But even though I was making a lot of money, but getting a job is something which I want to do. So when I was struggling, it was something which keep me motivated, right? So whenever you're feeling demotivated, first of all, take a break. No need to just keep rushing yourself or keep pushing yourself every time, because not every time you can keep up the same pace, right? You can solve 200 questions in 1 week, but you can't do it every week. So you have to keep swinging your mood as well. You have to keep swinging your timetable, your schedule as well, because steadiness is something which kind of boring. Either you can change the schedule of the things which you are trying to do every day, or you can change the way you're doing it. So one thing, if you're feeling demotivated, take a break. Go to temple, go to church, go to mosque, whatever you feel. Go to Gurudwara, whatever you feel good. Go there, take some time and sit there alone and see what is going on. I mean, like, things are not that hard. You are just somehow thoda sa unlucky. I can say it unlucky, because people are putting efforts. Everyone is putting efforts. Like I can't say कि like अगर किसी बंदे की जॉब लग चुकी है तो वो एफर्ट मार रहा था ज़्यादा, या फिर जिसकी नहीं लगी है उसने कम मारे. इट्स ऑल जस्ट अबाउट लक एंड द टाइमिंग. बिकॉज कभी कभी होता है कि कभी कभी टाइमिंग नहीं होती है. कभी कभी तुम किसी ऐसे एग्जाम में पास हो जाते हो जिसके तुम्हें आइडिया भी नहीं होता कि तुम पास हो पाओगे या नहीं पाओगे, राइट? और कभी कभी तुम ऐसे एग्जाम में फेल भी हो जाते हो जहां पर तुमने 10 दिन लगातार मेहनत की थी, राइट? तो थिंग्स कैन हैपन एंड थिंग्स विल गोना हैपन, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन दोस फेजेस, बिकॉज थिंग्स कैन चेंज. लाइफ इज नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि जो तुम चाहो वही हो जाएगा, राइट? तो फ्रेशर्स के लिए बस मैं एक चीज बोलूंगा कि ऑलवेज मेक श्योर कि तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो काफी हेक्टिक ना हो. तुम्हारे पास खुद के लिए मी टाइम भी हो. तुम्हारे पास एक ऐसा टाइम भी हो जहाँ पे तुम पेरेंट के साथ चिल कर रख सकते हो, जहाँ पर तुम अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो, गेड़ी मार सकते हो. मतलब जाओ जाके थोड़ा गेम खेल लो, जाके क्रिकेट खेल लो, जाके जो करना है करो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि तुम फिजिकली भी कुछ चीजें कर रहे हो. बिकॉज बैठे बैठे कई बार तुम्हारा एड्रेनलिन रश बंद हो जाता है और तुम खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो तो चीजें करने के लिए, जस्ट टू मेक थिंग्स डन, राइट? वो चीजें नहीं करनी है, बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट यू इन अ लॉन्गर रन. तुम्हारी नींद चली जाएगी. जैसे अभी का मैं बताऊं, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, देखो अगर तुम्हें टाइम दिख रहा हो, अभी सुबह के 5 बजे और मैं वीडियो बना रहा हूँ. और आज थर्सडे है, कल ऑफिस है. और इट्स नॉर्मल, मतलब मुझे अब चीजें की आदत लग चुकी है. इसीलिए बता रहा हूँ, नींद खराब हो जाती है, उसके बाद तुम्हें हो सकता है कभी कभी एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं कि लाइक ठीक है, कभी कभी अटैक वगैरह पड़ जाता है. एंड दिस थिंग्स हैपन. तो मेक श्योर कि यू कीप योरसेल्फ एंगेज्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली इन डिफरेंट थिंग्स एज वेल. मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना टाइम सारा उसमें डाल दो, बट
थोड़ा सा टाइम उसमें भी दो। बाकी चीज़ों फॉर एग्जाम्पल अगर तुम चेस खेलते हो, चेस खेलना स्टार्ट कर दो। अगर तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दो। जॉइन अ जिम, कुछ भी कर लो, ठीक है? तो फ्रेशर्स के लिए एक सिंपल एडवाइस है कि मेक योर शेड्यूल बिट थोड़ा सा लूजली कपल्ड सो दैट थिंग्स कैन जम्बल अराउंड जैसे तुम्हारा टाइम अलाइन करे। बिकॉज फ्रेशर्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है एंड दे आर कीप ऑन एग्जॉस्टिंग देमसेल्व्स। तो पहली चीज, स्केड्यूल थोड़ा लूजली कवर रखो। दूसरा, अगर चीजों का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो टेक अ ब्रेक, नॉट अ लॉन्ग ब्रेक बट एटलीस्ट 2 days और 3 days का ब्रेक ले लो, कुछ मत करो। बैठ के फोन चलाओ, सिंचन देख लो, ठीक है? सबसे बड़ी सिंचन है भाई, वो देखो। तो ऐसे कुछ खुद को भी ब्रेक दो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो खुद को ट्रीट भी दो। आज तो जाके बस पिज्जा खाऊंगा, एक ट्रीट दो खुद को। मतलब थोड़ा सा खुद को भी अप्रिशिएट करो, ठीक है? तो कीप डूइंग दीज थिंग्स एंड नाउ लेट्स कमिंग टू द जो ऑलरेडी इन चीजों में आ चुके हैं, दैट मींस दे आर इनटू द आईटी, पीपल हु आर ट्राइंग फॉर अ स्विच और हैज बीन लेड ऑफ और दे आर ट्राइंग टू move to a different industry because a lot of people are from different industry and they are trying to switch to IT industry. देखो, things are hard and they will take time. They can take longer time as well from the normal people, but yeah, things will work. Just one offer. मतलब स्ट्राइवर ने एक मेरे को एक बात बोली थी, आई गेस वीडियो के अंदर कहीं पर, तो कि एक ऑफर की बस वेट होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास 1000 तरीके से तुम रिजेक्ट हुए या फिर 1 लाख तरीके से रिजेक्ट हुए। एक ऑफर कैन डू एनीथिंग, समझ रहे हो तुम? तो हाँ, बस मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तुम एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो जल्दी से जल्दी लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू ज्वाइन यू टेक अ लोन, ये मत करना। पहले कुछ बैकअप बना लो, फाइनेंशियल बैकअप एटलीस्ट, देन वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। Because I've seen a lot of seniors of mine who have been struggling to pay the EMIs when they got laid off, right? So things can happen uh, in a very weird way. Life is very uncertain. So try to make yourself a bit happier from yourself. Engage with a lot of people, engage with the people who encourage you, and just give yourself some space to grow as well mentally and physically. Because IT is all about mental. I mean, like, you are keep on sitting on laptop just for 12 to 14 hours, and it's not gonna help you anyhow, except financially, right? You can make 2 lakhs, 3 lakhs per month, but उसके बाद क्या? एट द एंड मर जाओगे, राइट? उसके बाद क्या? तो थोड़ा सा खुद को भी टाइम दो एग्जॉस्ट होने से पहले, ताकि तुम इन चीजों से बच सको। तो दिस इज वन ऑफ द माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस कि जब भी तुम पढ़ना चाह रहे हो, जब भी तुम कोई एक चीज करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर करो कि तुम अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आधे घंटे का एक ब्रेक भी ले लो बाद में। उसके बाद फिर 1 घंटा बैठ जाओ, उसके बाद फिर आधे घंटे बैठ जाओ। मैंने देखा है काफी लोग एक एक घंटे का बोल के 10-10 घंटे बैठे रहते हैं और दो यार नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग रील्स एंड देन फिर वो डिमोटिवेट हो रहा है। तो एक बस दिमाग में रख लो कि आज अगर खेलना है तो खेलना है, बस खेलना है, कुछ नहीं करना। ना मैं डीएसए खोलूंगा, ना मैं डेवलपमेंट खोलूंगा, मैं लैपटॉप ही नहीं खोलूंगा। और मुझे अगर आज पढ़ना है तो मैं ना रूम के बाहर जाऊंगा ना कुछ करूंगा। तो द टाइम विच तुम जो चूज कर रहे हो कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, उस टाइम पर वही चीज करनी है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर तुम करोगे वो तुम्हारा टाइम का वेस्ट ही होगा। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक तुम अगर किसी दोस्त को नीड पड़ रही है, तुम अगर जा नहीं पा रहे हो तो ये मत करना। बट हाँ, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उनको तुम अच्छे से कंट्रोल करो, बिकॉज ये चीज़ें बाद में इम्पैक्ट करती है। और इसी की वजह से तुम्हें डिमोटिवेशन होता है, जहां पर तुम कुछ चीज़ें, तुम्हें पता है कि तुम वो चीज़ें कर सकते हो बट तुम नहीं कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारा टाइम टेबल और तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो समहाउ थोड़ा सा हिला हुआ है, या फिर टाइटली कपड़ है या फिर बहुत ज़्यादा ही लूजली कपड़ है। So fix your schedule, fix your timelines, and fix your body. It will impact. It will impact your results. It will impact your routine. It will impact your lifestyle. So this is one of my most important advice. इसको एज अ मोटिवेशन वीडियो मत लेना। मैं बस एज अ सीनियर, एज अ छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मान लो, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, राइट? जब मैं फ्रेशर था, जब मैं ये सब चीजें कर रहा था, जब मैं 5-5 कंपनी में एक साथ काम करता, आई हैव एग्जॉस्टेड माई सेल्फ एंड गॉट माइग्रेन। तो ये चीज़ें थोड़ी खराब है, जो कि लॉन्गर रन में बहुत दिक्कत देती है। बट अगर तुम सही तरीके से काम करोगे, अगर तुम सही चीज़ों पे फोकस करोगे, तो थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क आउट और सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी सटली, ठीक है? तो तुम्हें एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। तो बस स्टार्टिंग में थोड़े से एफर्ट्स है, जहाँ पे अपने रूटीन को वापस लेके आना है, वो चीज़ें करो, थिंग्स विल वर्क आउट। इट विल टेक टाइम बट इट विल वर्क आउट। कोई अगर डाउट हो, कोई अगर दिक्कत हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे डीएम कर सकते हो लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, या फिर फ़ोन नंबर किसी के पास हो तो कॉल कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।